Hello everyone. Welcome to this discussion of the questions of disaster management asked in this year's mains examination of civil services. So first of all, congratulations to everybody who has written the mains examination. You have done your best, and if you have worked sincerely, then results will be in your favor. Then the second point is that this year's disaster management questions are a mix of both environment and disaster management. As we have already discussed in the class, UPSC has a habit of asking new type of questions in disaster management, and they have already exhausted all the possible disasters they can ask. For example, cyclone, tsunami, earthquake, floods, urban floods they have asked many times, and droughts they have asked. So they are always on the lookout for a new type of disaster, and new type of disasters will come at the interface of environment and disaster management. So UPSC in the last few years has been focusing upon emerging disasters. For example, in 2023 they asked a question about sea level rise. In 2022 they asked a question about the coastal erosion, and these are the things which are common. They have also asked lot of questions about the water scarcity in India, the groundwater problem, how floods can be converted into a resource. So water management is a very big topic in UPSC. And in the last few years, they are focusing upon these types of questions. So let us see the first question. So it is about seawater intrusion and in the coastal aquifers. Okay, is a major concern in India. What are the causes of seawater intrusion and the remedial measures to combat this hazard? Okay. So the first thing they are asking, they are again focusing upon the coastal area, and they are again focusing upon the water resources. Now, if we want to understand, we can start this question by giving an introduction that there are reports that by 2100 sea level will rise by 1 meter, and this will lead to the intrusion of sea water in coastal aquifers in almost 70% of the areas, and India is no exception. Then we can discuss about the causes. So for understanding the causes of the sea water intrusion, we can see ki if suppose this is the coast and this is the sea, so and this is the coast. So sea water is little heavier as compared to fresh water. Density is higher because of high amount of salt concentration. So sea water always has the tendency to percolate and push towards the ground side. And on the ground side, we will have fresh water. यहाँ पे we will have aquifers, ground aquifers, basically rock formations in which fresh water is stored. Now, because fresh water is also having a pressure, aquifer has a pressure, so the fresh water will also push and sea water will also push, and there will be a boundary which will be set up between the two. So this boundary is called as the sea water interface. Okay. Now it is basically an equilibrium which is set up. Now it is the matter of the pressure difference. If the pressure of the sea level rises or the pressure of the aquifer falls, in both the cases sea water will intrude into the coastal aquifers. So we have to now understand ki why the pressure of the sea pressure will rise or aquifer pressure will drop. So the first case can be rise in the sea level rise. अगर हम causes की बात करें तो we can discuss sea level rise is the first cause. If the sea level rises, then the pressure increases and the coastal ocean water will push into the land. The second can be depletion of groundwater resources. If we are extracting lot of groundwater, ठीक है, then also the pressure in the aquifer will fall down, and then also the sea water will intrude into the land. Apart from this, if we see that in India, sea level is rising and groundwater extraction is very prominent, especially in the coastal areas. If you see Gujarat, it has the longest coastline, lot of industries, lot of population, so lot of demand for water. In Andhra Pradesh, there is lot of demand for farming, etc. Tamil Nadu, there is lot of demand for farming and population pressure. So West Bengal, population pressure is also high, agriculture is also there. So lot of groundwater extraction is being done, and this is reducing the aquifer pressure. Okay. Now the second point is ki there can be other factors. For example, disasters such as cyclone, tsunami, storm surges.
In all these disasters, the level of ocean water rises. ठीक है. In tsunami, ocean rises so much that the ocean water is flooded onto the land, so that water contaminates the groundwater resources, and it also percolates to underground water table. In the cyclone, the sea level rises and the ocean water is again brought onto the land. So all these phenomena are also contributing to increasing intrusion of sea water into the coastal aquifers. So wherever you see these phenomena, you can say that sea water intrusion is happening. For example, in Odisha, Andhra Pradesh, cyclones and storm water surges, they are seen very often, and because of that, sea water is intruding into the coast. Another reason for intrusion is coastal erosion. Coastal erosion. If due to any reason, your coast is eroded, suppose this much amount of coast is eroded, ठीक है, and this much amount of coast is eroded, so obviously sea gains upper hand, sea थोड़ी सी आगे आ जाएगी, and जितना sea आगे आती जाएगी एक्विफर में पानी उतना जाता रहेगा. तो coastal erosion का क्वेश्चन they have already asked in 2022. तो उसके जो causes हैं आप लिख सकते हो, wave action, tidal action, and construction of houses etc. near the coast, that is leading to coastal erosion. Coastal devegetation, ठीक है. एक और इसमें हम लिख सकते हैं coastal devegetation, ठीक है. When you remove vegetation from the coast, the percolation of water also stops. Vegetation helps to the water to vegetation जो है वो पानी को रोकने में हेल्प करती है और वाटर को परकुलेट करने में भी हेल्प करती है. तो जितने यहाँ पेड़ होंगे उतना पानी परकुलेट होगा and it will recharge the ground water. Then you can also add excessive concretization. Excessive concretization in the coastal region. So there are a lot of houses which are constructed near the coast, and the more concrete you put on the coast, the less permeable the soil will become. So the groundwater recharge जो है वो कम हो रहा है, ठीक है. इसके अलावा अगर हम ये सारे फैक्टर्स, ये सारे आपको समझाने पड़ेंगे बिकॉज ये 10 वर्ड्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम ज़्यादा नहीं समझाएंगे, बट एटलीस्ट one लाइन वी हैव टू राइट अबाउट देम. देन वी कैन ऑल्सो राइट अनदर फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, in Maharashtra, there are lot of lava formations underground which helps the ocean water to intrude inlands, ठीक है. अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो lot of lava formations, lava fissures, ठीक है, which helps in the intrusion of the coastal waters. If we talk about Tamil Nadu, if we talk about Gujarat, then there are other factors also. For example, salt pans and sometimes shrimp farming, ठीक है. In many parts of India, गुजरात में और तमिलनाडु के पास salt pans are created. Salt pans are basically where ocean water is filled onto the land and it is left to evaporate so that salt remains. तो जब ocean water को land पे आप fill करके रखोगे तो उसकी वजह से जो सलाइन वाटर है धीरे धीरे परकुलेट भी होता है एंड साथ में अपना सॉल्ट भी ले जाता है, तो उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर एक्विफर में भी सॉल्ट परकुलेशन होगा. श्रिम्प फार्मिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो श्रिम्प कल्टिवेशन है वो लार्ज स्केल में होती है, एंड श्रिम्प फार्मिंग के लिए दे मेक पॉन्ड्स ऑन द कोस्टल रीजन, एंड इस पॉन्ड्स में हमको सलाइन वाटर भरना पड़ता है सो दैट श्रिम्प कैन सर्वाइव, एंड इसकी वजह से धीरे धीरे हमारा वाटर भी नीचे जाता है, ठीक है, परकुलेट होता है. जो ओशन वाटर है, सलाइन वाटर कैन परकुलेट. एंड श्रिम्प फार्मिंग के लिए लॉट ऑफ फ्रेश वाटर इज ऑल्सो नीडेड. तो जितना फ्रेश वाटर आप एक्सट्रैक्ट करोगे उतना ही आपका एक्विफर जो है उसका प्रेशर कम होता जाएगा. इसके अलावा, ये सब लिखने के अलावा आप एक चीज़ और लिख सकते हो, माइनिंग. यू कैन राइट अबाउट माइनिंग, क्योंकि कोस्टल रीजन में से गोवा में, कर्नाटका में जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है, या फिर केरला में से क्वारिंग एक्सेट्रा, उसकी वजह से माइनिंग में लॉट ऑफ वाटर रिसोर्सेज आर नीडेड, एंड ये सारा पानी जो है ग्राउंड वाटर या रिवर वाटर वो यूज़ करते हैं. एंड इफ़ यू यूज़ ऑल दिस माइनिंग, इफ़ यू यूज़ दिस फ्रेश वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, तो आपका एक्विफर का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है. इसके अलावा
ड्यूरिंग माइनिंग एक्टिविटी डिफॉरेस्टेशन भी होती है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो वाटर पर्कुलेशन है वो कम होगा, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होगा। तो ये सारे कॉजेज आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन, सो वी विल नॉट एक्सप्लेन दैट मच इन द आंसर्स, बट एटलीस्ट वन लाइन वी कैन राइट, तो यू विल हैव इनफ नंबर ऑफ पॉइंट। अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पॉइंट्स यू कैन राइट एज द कॉजेज। अब अगर हम बात करें कि इसके रेमेडियल मेजर्स की, तो अब इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, जो भी हमने लिखा है उसका अपोजिट लिखना है, ठीक है। जैसे इफ यू टॉक अबाउट सॉल्यूशंस, तो क्या सॉल्यूशन लिखोगे कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पे लिमिट लगानी चाहिए। तो हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है, दैट इज द मेन अथॉरिटी टू ओवरसी द ग्राउंड वाटर। तो इट पब्लिशेज रिपोर्ट्स ऑन द ग्राउंड वाटर यूजेज। फॉर एग्जाम्पल दो रिपोर्ट्स पब्लिश करता है ये, एक क्वालिटेटिव रिपोर्ट एंड एक क्वांटिटेटिव रिपोर्ट। इन दोनों रिपोर्ट्स में ग्राउंड वाटर का मॉनिटरिंग एंड जो लेटेस्ट स्टेटस है वो लिखा होता है कि हाउ मच ग्राउंड वाटर वी हैव, व्हाट इज द क्वालिटी एक्सेट्रा। तो क्वालिटेटिव में पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी मेंशन किया जाता है, साथ में सी वाटर इंट्रूजन भी इसमें मेंशन किया जाता है। तो इनकी रिपोर्ट्स जो हैं ये सी वाटर के बारे में भी बताती है हमको, ठीक है, और बाकी पोल्यूशंस के बारे में भी बताती है। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पे लिमिट लगानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एक्यूफर ऑफ दैट एरिया। फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे फोकस करना चाहिए हमें, फिर कोस्टल रीवेजिटेशन पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। फिर वी शुड यूज एग्रीकल्चर में हमको वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला जो है ना वो आप लिख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इंडिया ICAR हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड अ राइस वैरायटी, 2 राइस varieties which are genome edited rice. They are the ones which can require less water and they can survive in saline conditions also, ठीक है। तो आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हो। इंडस्ट्री में हमें बेसिकली रीयूज़ ऑफ वाटर के बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। और अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करेंगे तो हम इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर सकते हैं, हम उसमें रिवर्स पे चेक डैम्स बनाने की बात कर सकते हैं। चेक डैम्स आर स्मॉल डैम्स विच स्टॉप द रिवर फ्लो सो दैट द पर्कुलेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे इसमें सॉल्यूशंस हम लिखे थे, माइनिंग पे रेगुलेशंस वगैरह कराना चाहिए, ठीक है। तो वो सब हम इसमें जो भी हमारे कॉजेज थे ना उसके सॉल्यूशंस हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। एंड जब हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग डीसैलिनेशन प्लांट्स लगा सकते हैं। डीसैलिनेशन प्लांट से हम लोग वाटर को पंप कर सकते हैं, पंप वाटर इनटू एक्यूफर्स। जितना पानी हम एक्यूफर्स में पंप करेंगे उतना ही फ्रेश वाटर का प्रेशर बढ़ेगा। एंड लास्ट केस जो कि हमारा एक्सट्रीम केस होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि सपोज दिस इज द कोस्ट एरिया, दिस इज द सी एंड दिस इज द कोस्ट। तो if too much sea water is intruding into the area, so what you can do, you can create a special obstruction, a engineering structure, they are called dikes, ठीक है। कंक्रीट या मेटल शीट वगैरह से आप यू कैन इंसर्ट देम इन द ग्राउंड, सो दे क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द अंडरग्राउंड फ्लो ऑफ सी वाटर, ठीक है। इसके फ्लो पे ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करेंगे, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका ग्राउंड सी वाटर का इंट्रूजन कम हो जाएगा। और कोस्टल इरोजन के लिए हम लोग मैनग्रोव्स लगा सकते हैं, हमारा प्रोजेक्ट मिष्टी है तो हम लोग सी वॉल बना सकते हैं, वी कैन यूज टेट्रापॉड्स टू स्टॉप कोस्टल इरोजन। सो ऑल दीज पॉइंट्स कैन बी रिटन इन द सोल्यूशन। द आइडिया इज़ कि वी हैव मैनी पॉइंट्स, इसके ऊपर हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हमें सारे पॉइंट्स को रेलिवेंट के हिसाब से, रेलिवेंस के हिसाब से लिखना है एंड ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है, बट हमें पॉइंट्स मेंशन करने हैं। तो यू हैव इनफ पॉइंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द, अच्छा इसमें कंक्लूजन क्या लिख सकते हो आप, कंक्लूजन में यू कैन राइट कि सी वाटर इंट्रूजन या degrading quality of coastal aquifers is a major concern because large percentage of our population lives in the coastal region,
ठीक है, तो उससे वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शन अबाउट दिस प्रॉब्लम नाउ, देन इन द फ्यूचर इट कैन हैव सीवियर रिपरकशंस। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्लस डिजास्टर। ठीक है, mineral resources, it is asking about mineral resources are fundamental to the country's economy and they are exploited by the mining. Why is mining considered environmental hazard? ठीक है, explain remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining. So it is again asking the impact of environmental impact of mining and the remedial actions. ठीक है, तो you can start by writing कि जो mining है वो इंडिया में बहुत नेसेसरी है, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इट नीड्स लॉट ऑफ रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो इसलिए हमें माइनिंग को करना है, बट वी हैव टू डू इट इन अ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर। तो अगर हम माइनिंग रिलेटेड हैजार्ड्स की बात करें तो माइनिंग से क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं। पहला तो लैंड डिग्रेडेशन होगा आपका। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन से इरोजन होगा, सॉइल इरोजन। ठीक है, तो वी कैन जस्ट मेक अ, मतलब आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो सॉइल इरोजन होगा, है ना, सॉइल इरोजन से सिल्टेशन होगा इन वाटर बॉडीज और उससे क्या होगा, रिडक्शन इन देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, और उससे क्या होगा, फ्लड्स होगा। ठीक है, तो पहला तो हमने लैंड डिग्रेडेशन, तो डिफॉरेस्टेशन हमने पहला पॉइंट लिखा, उससे हमने ये बना दिया। इसके बाद डिफॉरेस्टेशन से एक और इम्पैक्ट लिख सकते हो आप, बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, एक और लिख सकते हो रिडक्शन इन वाटर, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक है, तो ये डिफॉरेस्टेशन के सारे इम्पैक्ट्स हैं। इसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन में और पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, रेफ्यूजी क्राइसिस एक्सेट्रा, तो ये सब हम लिख सकते हैं, बट दिस इज़ मोर रिलेटेड टू सोशल। बाकी जो है एनवायरमेंटल हैजार्ड पूछा है, तो इसलिए एनवायरमेंटल हैजार्ड पे फोकस करेंगे। इसके अलावा हम लोग माइनिंग का सेकंड जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो सीधा पोल्यूशन लिख सकते हैं। और पोल्यूशन में आप क्या लिख सकते हो, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो वाटर कंटेमिनेशन होता है। अगर हम इसमें बात करें, जैसे माइनिंग का एक वन ऑफ द मेजर रिपरकशन ऑफ माइनिंग इज एसिड माइन ड्रेनेज। तो दिस हैपन्स व्हेन सल्फाइड रॉक्स विच कंटेन सल्फर, they come into the contact of air and water, so sulfuric acid is formed, and this sulfuric acid reacts with the other rocks and it leaches the heavy metals। जो बाकी रॉक्स में से हेवी मेटल्स जैसे मरकरी है, आर्सेनिक है, उन सबको डिजोल्व करके एंड इट लीड्स टू द पर्कुलेशन ऑफ दीज हैवी मेटल्स इन द ग्राउंड वाटर। तो उसकी वजह से आपका ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो जाता है। अगेन वी आर कमिंग बैक टू द ग्राउंड वाटर क्वेश्चन, क्योंकि पिछली क्वेश्चन में भी हमने वही डिस्कस किया था। ग्राउंड वाटर जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसकी रिपोर्ट में ये मेंशन है। ठीक है, तीसरा हम लोग लिख सकते हैं अनस्टेबिलिटी ऑफ द लैंड। ठीक है, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं लैंड सब्सिडेंस। ठीक है, लैंडस्लाइड्स। ठीक है, wherever you have mining activity there can be minor landslides, and because जैसे कि if you see झारखंड में recently there was a case कि there was a abandoned coal mine and people were mining the coal illegally, the local people were taking out the coal illegally and one of the mine collapsed। ठीक है, तो उसकी वजह से लैंड सब्सिडेंस हो सकता है एंड लैंड स्लाइड्स हो सकती है। एंड वी हैव सीन अदर केसेस, जैसे कि अगर हम देखें तो फोर्थ जो रैट होल माइनिंग वाले केसेस हैं, इसी बार जो असम में दीमा हसाओ में जो इंसिडेंट हुआ था जनवरी 2025 में,
उसमें देयर वर मैनी माइनर्स विच वर माइनिंग कोल इलीगली, तो वहाँ से रैट होल माइनिंग में दे वर बरीड डाउन. Although rat hole mining is has been banned in India since 2014, but still it is continued. ठीक है, इलीगली लोग करते ही हैं अभी भी. ये सब लिखने के बाद हम लोग इसमें और भी लिख सकते हैं कि जैसे जब हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होगा तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन वगैरह के बारे में हमने लिख दिया. तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द एनवायरमेंट रिलेटेड हैजार्ड्स. फाइनली अब हम लोग इसमें एक चीज़ और लिखते हैं कि माइनिंग की जो प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग ऑफ द ओर, उसमें केमिकल्स यूज किए जाते हैं जैसे कि साइनाइड, ठीक है, या सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, साइनाइड, सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये सारे जो केमिकल्स हैं ये यूज किए जाते हैं. एंड दीज केमिकल्स जो कि आप देखोगे ना, तो होता क्या है कि आफ्टर द माइनिंग ऑल द वेस्ट ऑफ द माइनिंग इज स्टोर्ड इन अ ह्यूज टाइप ऑफ डैम एंड इसको बोलते हैं टेलिंग्स. ठीक है, इसमें वाटर प्लस केमिकल्स वगैरह या फिर रॉक्स वगैरह ये रहती है. तो दिस इज़ अ टेम्परेरी टाइप ऑफ डैम विच इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड इट हैज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ स्टोर्ड एंड वाटर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स वगैरह रहते हैं. तो बिकॉज ये टेलिंग्स में केमिकल्स हैं तो धीरे धीरे दे लीच डाउन. समटाइम्स ये जो डैम का जो ये वॉल बनाते हैं ना, यहाँ पे मड एम्बैंकमेंट बनाते हैं, अर्दन एम्बैंकमेंट, ये टूट जाता है तो इसकी वजह से फ्लड आ जाती है. तो ये सारे एंगल्स हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ इफ़ यू वांट टू गिव एग्जांपल्स, तो झारखंड में जो कोल माइंस हैं दे आर बर्निंग सिंस 1916, है ना. वहाँ पे जो कोल माइंस की वजह से जो आग लगी है वो 1916 से चल रही है. और आप ये फायर भी लिख सकते हो, एक्सप्लोजन भी लिख सकते हो, है ना, और उसकी वजह से गैस लीक वगैरह. तो ये सारे जो एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हैं ड्यू टू माइनिंग हम लिख सकते हैं. अब इसमें सॉल्यूशंस की बात आएगी तो सॉल्यूशंस में हमको यही करना है कि माइनिंग हमें करनी है, बट माइनिंग का हमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देखनी है. तो देर आर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स विच से दैट बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट यू हैव टू गेट EIA अप्रूवल. एंड उसके बाद उसी में ये होता है कि व्हाट विल बी द प्लान फॉर द एंड ऑफ द माइन. जब माइनिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद उस एरियाज़ को दोबारा से रिकलमिनेशन और रिफॉरेस्टेशन का प्लान होता है. एंड द आइडिया इज़ कि माइनिंग के बाद जो माइंस है, एम्प्टी माइंस, उसको फिल किया जाता है, रीइंफोर्स किया जाता है सो दैट दे डू नॉट कोलैप्स. या फिर जो सरफेस है उसको इवन किया जाता है ताकि वो लैंडस्लाइड्स के रिस्क कम हो जाए. ऊपर ग्रीन कवर वगैरह बनाया जाता है ताकि जो पोल्यूशन है वो कम हो जाए. जो वाटर है, वेस्ट वाटर, उसको ट्रीट किया जाता है ताकि उससे पोल्यूशन ना हो. और जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है इंडिया का 1957, MMDR एक्ट, ठीक है, उसके अंदर देर आर सर्टेन रूल्स, कि जो माइन ऑपरेटर है वो जो पानी है उसको ऐसे ज़मीन पे नहीं छोड़ सकता, उसको इम्परमेबल सरफेस बनानी पड़ेगी एंड उसके ऊपर ही दे कैन स्टोर द वेस्ट एक्सेट्रा. सो ऑल दीज रूल्स आर देयर. देन व्हाट वी कैन डू कि रैट होल माइनिंग तो बैंड ही है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हमको सही से करना चाहिए. ये सब हम कर सकते हैं. देन इन द एंड वी कैन राइट दैट वी कैन यूज़ मॉडर्न मेथड्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. फॉर एग्जाम्पल कोल गैसिफिकेशन हैज़ बीन स्टार्टेड इन झारखंड. तो उसमें क्या है कि वी डू नॉट डिग द कंप्लीट माइन, वी इंजेक्ट वाटर एंड स्टीम थ्रू एट हाई प्रेशर थ्रू अ पाइप एंड उसके थ्रू वी एक्सट्रैक्ट सिन गैस. तो द एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिन गैस एंड देयरफॉर जो माइनिंग का इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज हो जाता है. एंड इसके अलावा लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि वी कैन डू बेटर जियोलॉजिकल सर्वेज सो दैट वी डोंट हैव टू डू टू मच एक्सप्लोरेटरी माइनिंग. एंड हमको डायरेक्टली पता हो कि किस पॉइंट पे मिनरल्स हैं, हम डायरेक्टली उसी पॉइंट पे जाके डिग कर सकते हैं. तो ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं. एट द एंड आप लिख सकते हो कि इंडिया में बहुत सारे रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, लॉज हैं विच प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ के सबके लिए एक्ट हैं. एंड देर आर डेडिकेटेड एक्ट्स फॉर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट. MMDR एक्ट 1957 हमने लिखा. तो द ओनली पॉइंट इज़ कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट दीज एक्ट्स बेटर.
ठीक है. एंड लास्टली वी कैन ऑल्सो राइट कि फॉर एनर्जी रिलेटेड मिनरल्स वी कैन इंक्रीज आवर रिलायंस टू रीन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, जैसे कि इथेनॉल हो गया या फिर हमारा सोलर हो गया, विंड हो गया. तो द मोर वी रिलाई ऑन रीन्यूएबल एनर्जी द लेस वी विल नीड द इनपुट ऑफ द कोल, पेट्रोल, गैस एक्सेट्रा. तो उनकी माइनिंग हम कम कर सकते हैं. ठीक है, तो विद दिस वी कैन कंक्लूड द आंसर. तो दीज आर द टू क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड in this year's prelims mains examination. These two questions can never be solved by the knowledge of only disaster management or only geography or only environment. Therefore, the UPSC has this trend of asking multidimensional question, and your answer should also be multidimensional. ठीक है, तो I hope you have written very good answer, and you should take rest for a few days and then start preparing for the interview, because if you are giving the mains examination then you are hoping that you will get a call for in the interview. ठीक है, तो thank you everyone, best of luck to everybody.